सूर्य समाचार के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आज आपकी आवाज में बात होगी राहुल गांधी के विवादित बयान की। विदेशी धरती से एक बार फिर राहुल गांधी ने देश की छवि को दागदार करने वाला बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। जब भी वो विदेशी दौरे पर रहते हैं तब कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे देश में संग्राम शुरू हो जाता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बॉस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए इस बार सवाल भारतीय चुनाव आयोग पर उठाया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस बयान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है और सवाल पूछने लगी है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब करते हैं। ऐसे सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल देश की संस्थाओं, सरकार और संघ पर हमलावर बयान देने के लिए किया है। राहुल गांधी के बयानों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। जरूर देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सुनाते हैं 2017 से अब तक विदेशी धरती पे राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान। Eating beef. This is new in India and damages India very badly. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. There are forces in our country that are dividing the country. And it is very dangerous for the country, and it ruins our reputation abroad. BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. India is not described as a nation, it's described as a union of states. Organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The fact that there is a weakening of press freedoms, this is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracy. In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, that is, we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in press conferences. तो सुना आपने कि किस प्रकार से जब भी राहुल गांधी विदेश गए तब उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे देश में संग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ सवाल हमारे भी हैं। सवाल है कि देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेश में चर्चा करना कितना सही है। देश की छवि बेहतर बनाने का काम क्या सिर्फ सत्ता पक्ष का है?
सत्ता से बाहर विपक्ष की देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती के बारे में देते हैं विवादास्पद बयान? देश की छवि बेहतर बनाने का काम क्या सिर्फ सत्ता पक्ष का है? सत्ता से बाहर विपक्ष की देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर बार बार देते हैं विवादास्पद बयान? क्या विदेश में बयान देने से देश के मुद्दे हल हो जाएंगे? तो राहुल गांधी के तमाम बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार सामने आए हैं। देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेश में चर्चा करना कितना सही है? देश के मुद्दे हैं, घर के भीतर इनको लेकर के बातचीत होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को विदेश में उठाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग को लेकर के हमला किया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के यहां पर बातें कही गई है कि तमाम वोटर्स वहां पर ऐड हुए। और हमारे साथ श्रेया जुड़ चुकी हैं, ये नोएडा से हैं। श्रेया, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, आप इस बयान को किस तरीके से देखती हैं और आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान जो है उनको लेकर के देश में चर्चा होना चाहिए, विदेश में इसका जिक्र नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, राहुल गांधी अभी ही नहीं, जैसे आप लोगों ने भी अभी दिखाया है, पिछले कई सालों से जब भी वो बाहर जाते हैं कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं। कभी किसी सरकारी एजेंसी पर सवाल उठा देंगे, कभी सरकार के कामकाज पर उठा देंगे, कभी प्रधानमंत्री के काम पर उठा देंगे। और इस बार तो उन्होंने मतलब देश की जो सबसे विश्वसनीय संस्थान है चुनाव आयोग, उसको लेकर सवाल उठा दिया है। तो राहुल गांधी चाहते क्या और वो क्यों बाहर जाकर बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब ये समझ में नहीं आता। अगर उनको कुछ बोलना है, अपने आप कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रखिए, लोगों के बीच जाइए। विदेश में जाकर बोलने से क्या होगा? विदेश में कौन उनकी बात मतलब उसका क्या हल उस मंच पर निकलने वाला था जहां उन्होंने अपनी ये बात रखी है? तो ये सरासर गलत है। राहुल गांधी की ओर से इस तरीके की बातें क्यों की जाती हैं? मतलब ये शायद देशवासियों के भी समझ से परे है कि वो वहां जाकर क्यों बोलते हैं, जबकि यहाँ भारत में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोकसभा में अपनी बात संसद में रख सकते हैं, लेकिन वहां भी कुछ भी बोलेंगे। तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है भाई देश की। मोदी जी ने थोड़ी ठेका उठा के रखा हुआ है कि देश की छवि एकदम बढ़िया रखेंगे और ये लोग बाहर जाकर कुछ भी बोलते रहेंगे। जी श्रेया, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ प्रणव जुड़ चुके हैं, लखनऊ से प्रणव जुड़े हैं। प्रणव, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान सामने आया है, चुनाव आयोग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं और विदेश की धरती पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, देश की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है इससे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहुल गांधी देश को बदनाम करने का लगातार काम करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कई बार विदेश के दौरे पर जाते हैं, कभी देश की बुराइयां करते हैं, कभी देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो तमाम जो ऐसी चीजें होती है वो विदेश में जाकर करते हैं, जिससे कि देश का कहीं ना कहीं जो नाम है वो खराब होता है। अब चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसे में लोकसभा में वो बैठते हैं, उनके बैठने का तरीका जो है वो वायरल होता है, वीडियो लोगों, क्योंकि इससे पहले जब वो भाषण देते हैं तो कभी वो मशीन से आलू निकालते हैं, सोना निकालते हैं, ऐसे बयान वो विदेशों में भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जरूर बदनामी करते हैं। फिर एक बार इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है चुनाव आयोग को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारत की लगातार ये बदनामी करने की, तो कांग्रेस में इतने बड़े अच्छे पद पर हैं ये, उसके बावजूद इनको सोचना चाहिए कि इनका जो बैकग्राउंड है पूरा राजनीतिक परिवार का है, उसके बाद भी भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तमाम बार महंगाई को लेकर या जो ट्रैफिक लगा है अभी यूएस में भारत के ऊपर, उसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री को भी बदनाम करने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने ही देश के प्रधानमंत्री है, उनको विदेशों में जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छवि भारत की भी खराब होती है। जी प्रणव, ये तमाम चीजें जो है ये सामने रखी जा रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय, किस तरीके से आप राहुल गांधी के इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ओर से तमाम सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर उठाए हैं, इसी के साथ साथ 2017 से लगातार वे इस तरीके के सवाल उठाते आए हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट पर वे सवाल उठाते हैं, कभी आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाते हैं, कभी मीडिया पर सवाल उठाते हैं। इन बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर जी, सबसे पहले नमस्कार। ये एक तो मेरी समझ नहीं आता कि राहुल गांधी इतना इम्पोर्टेंट चैनल के लिए क्यों हो गया
जो कि बयान देने का जिसको खुद भी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। उसको समझ ही नहीं है कि मैं क्या बयान दे रहा हूं, ये देश हित में है या नहीं है। तो इस बात को तो सर निगलेक्ट करनी चाहिए। उनको सिवा अपनी केवल किसी तरह से सत्ता मिल जाए। हेलो जी विजय, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के आप लगातार तमाम बयान सुन रहे हैं, लोगों की राय सुन रहे हैं, और हमारे साथ अजय अयोध्या से जुड़े हैं। अजय, राहुल गांधी का एक और विवादास्मक बयान विदेश में सामने आया है, इस बयान को लेकर के आपकी राय? देखिए, मुझे राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। जो आप ये जो प्रोग्राम जो चला रहे हैं टीवी पे, राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन दिक्कत सिर्फ राहुल गांधी जो अपने आसपास जो चाटुकार रखे हुए हैं, जो उनको लिख कर देते हैं, जो उनकी स्पीच तैयार करते हैं, जो उनके संबोधन की तैयारी करवाते हैं, वो लोग जो है वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज लिख कर देते हैं कि राहुल गांधी हमेशा विवादों में ही पड़े रहते हैं। राहुल गांधी अभी तक 50-55 साल के हो गए, अभी तक युवा ही बने हुए हैं। न जाने इनका युवापन कब खत्म होगा और इस प्रकार से इनकी बयानबाजी जो है वो कब खत्म होगी। हम तो इनको सिर्फ निवेदन करते हैं कि वो श्री अयोध्या जी आए, रामलला के दर्शन करें और रामलला इनको सद्बुद्धि दें। अन्यथा एक जो मजबूत और एक स्वस्थ विपक्ष चाहिए देश की सत्ता को बैलेंस करने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, वो काम ये इस जन्म में नहीं, अगले और 6-7 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि ये अपने सलाहकार अच्छे रखें और बातों को बहुत सोच कर, समझ कर, तोल मोल कर बोलें। और विदेशी जमीन पर कहीं पे भी किसी यात्रा में आप जाते हैं और जो मौज मस्ती करते हैं आप वो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की समस्या का समाधान तो देश में रहकर ही ढूंढने से होगा। यहीं पर अपनी आवाज उठाने से होगा, आंदोलन करने से होगा या बैठकर बात करने से होगा, तभी जाके लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। आप लाल किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन सिर्फ लाल किताब लेकर घूमने से बात नहीं होगी। संविधान की बातों को अक्षरशः पालन करने से ही। जी अजय, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। गौरव, राहुल गांधी का ये विवादास्मक बयान सामने आया है और लगातार इस तरीके के बयान वो विदेश में जाकर के देते हैं, आप इस बयानों को कैसे देखते हैं? 2017 से लगातार इस तरीके के उनके बयान सामने आए हैं, तमाम संस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और इस बार चुनाव आयोग को वो घेरते हुए नजर आए हैं विदेश में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो उन्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन यार अगर कोई नेता विदेश में जाके देश की बदनामी करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार देश का सम्मान कर बढ़ा रहे हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए विदेश में इस तरह से देश की बदनामी करेंगे तो एक नेगेटिव मैसेज आएगा। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को पूरा हक है सरकार की आलोचना करने का, लेकिन वो एक ऐसा मंच चुन रहे हैं जहां पर देश की बदनामी होती है, देश इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो राहुल गांधी को अगर बाकी में पॉलिटिक्स करनी है, बाकी में सरकार के खिलाफ आलोचना करनी है, तो वो देश में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो विदेश में जाए, अमेरिका जाए, बाकी जाए। तो सबसे बड़ी मैं बात करना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो ये बयान है, इस तरह की जो काम है उनका, कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के लिए बहुत ही नेगेटिविटी फैलाने का काम करता है। तो इसलिए राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, उस समय भी राहुल गांधी की थूथ हुई थी। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स के यार आप विदेश में जाके आपकी सरकार के खिलाफ बात बोले, आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करें, कहीं ना कहीं इससे जो देश की जो डिग्निटी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत।
जी गौरव, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ राहुल राजस्थान से जुड़ चुके हैं। राहुल, क्योंकि आप राजस्थान की धरती से आते हैं, राजस्थान की धरती जो है वो राजपूतों की धरती मानी जाती है और वहां पर तमाम वीर योद्धा देश के पैदा हुए हैं। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि राजस्थान ने तमाम समय पर देश की रक्षा की है, और इस तरीके के बयान जब एक सियासी नेता के तौर पर राहुल गांधी के सामने आते हैं विदेश की धरती पर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूं, और जहां तक रही राहुल गांधी की बात, तो मुझे बस एक चीज कहना है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तभी इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? देश में रहते हुए देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देश से बाहर जाते हैं देश के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। जब भी देश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ ऐसी घटनाएं होती है या किसी भी समुदाय के खिलाफ, मैं सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी समुदाय के खिलाफ या देश विरोधी कोई गतिविधि होती है, बांग्लादेश में जब हिंसा होती है तब राहुल गांधी चुप होते हैं, लेकिन जैसे ही देश के बाहर जाते हैं ये देश के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए राहुल गांधी को ये समझना होगा कि देश प्रेम सबसे बड़ा होता है, और इसके लिए राहुल गांधी को खुद पहले देश का नागरिक होना होगा। दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग देश के खिलाफ कभी अच्छा नहीं बोल सकते, और वो भी जब देश के बाहर हो। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बयान जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है राहुल गांधी की नागरिकता पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक है भी या नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंसान खुद को भारत का नागरिक नहीं कह सकता, वो दोहरी नागरिकता रखता, वो भारत के खिलाफ अच्छा कैसे बोल सकता है? जी राहुल, आपने अपनी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बात रखी। तो राहुल गांधी को लेकर के लगातार आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं, उनकी क्या राय है, जिस तरीके का उनका बयान सामने आया है, विदेशों में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, इसको लेकर के तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और ऐसे मुद्दों पर सूर्य समाचार लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे सवाल लगातार हैं कि देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेश में चर्चा करना कितना सही है, और लगातार इस तरीके की बातें राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। देश की छवि बेहतर बनाने का काम क्या सिर्फ सत्ता पक्ष का है? इसी के साथ साथ ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। सत्ता से बाहर विपक्ष की देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान सामने आया है, इसको लेकर के देश में सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। आखिर क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पर बार बार विवादास्मक बयान देते हैं? क्या विदेश में बयान देने के बाद देश के मुद्दे जो है वो हल हो जाएंगे? विदेशी धरती पर इस तरीके के बयान देना चाहिए या देश में ही इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। देश के आंतरिक मुद्दों पर विदेश में चर्चा करना कितना सही है? राहुल गांधी के विवादास्मक बयान जो है वो सामने आया है। राहुल गांधी तमाम मुद्दों को लेकर के इस तरीके के विवादास्मक बयान विदेश में देते आए हैं। 2017 से तमाम बयानों की बात करें तो कई बार चुनावी संस्थाओं पर भी सवाल उठाते आए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते आए हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हुए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार उनकी ओर से सवाल उठाए गए हैं, आरएसएस को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, हिंदुत्व को लेकर के सवाल उठाए गए हैं, और लगातार ये सवाल जो है ये देश के भीतर नहीं देश के बाहर उठाए जाते हैं। और जब ये सवाल देश के बाहर उठाए जाते हैं तो विदेशी मीडिया भी इसे कवर करता है, और कहीं ना कहीं देश के दुश्मन भी इसका फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। तो क्या देश में बयान देने से देश के मुद्दे हल हो जाएंगे, या फिर विदेशी ताकत जो देश के खिलाफ तमाम काम कर रही है? और शेष सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से शेर जी राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और जिस तरीके से विवादास्मक बयान जो है वो विदेश में लगातार वे देते हुए आए हैं, चाहे 2017 से अभी तक की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर के वे विदेश में जाकर के बयान देते हैं, और देश के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं वो इन बयानों का इस्तेमाल करती है। जैसा कि मैं आपको हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी हो इनका नेता, ये भारत की धूमिल छवि करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाणक्य का एक कथन है ना कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी जो है देश की सेवा नहीं कर सकता, तो वही कथन जो है ये सत्य करके दिखा रहे हैं कि जो कितना भी अच्छा कर ले देश में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देश के बाहर जाके ऐसे स्क्रिप्ट निकाल के लाते हैं कि पता ही नहीं होता कि कहाँ से ये स्क्रिप्ट निकालते हैं, विदेश में बैठ के निकालते हैं, या कोई इनके जो लिखने वाला है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये स्क्रिप्टेड सब चीज़ें लिखी होती हैं। अब जैसे अमेरिका में इन्होंने बयान दिया
तो क्या मतलब पड़ता है अमेरिका जाकर? जो मुद्दा है तो आप संसद में बैठ के उठाइए ना, आप यहाँ की जनता के साथ बैठ के बात करिए ना। आप अपनी यात्रा निकालते हैं और यात्रा निकाल के घर चले जाते हैं। चुनाव के समय आप दिखाई देते हैं, चुनाव से पहले कहीं नहीं होते, चुनाव के बाद कहीं नहीं होते। तो हमेशा इन्होंने जो है भारत की धूमिल छवि करने की कोशिश की है और जनता इसका जवाब जरूर देगी आगे आने वाले चुनाव में। जी शेर सिंह जी, आपने अपनी बात रखी, तो ये तमाम दर्शकों को आप सुन रहे हैं, वे अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल आपकी आवाज में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। More people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है।